السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعید عرفان. آپ دیکھ رہے ہو ایس کے نیوز. ایس کے نیوز میں آپ کا پھر سے سواگت ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی کیا ہے تازہ خبر. راہ ان کو ملتی ہے وہ ایسے ہی کسی پردہ سے، وہ ایسے ہی کسی شخص سے ملتی ہے. جی ہاں، میری مراد ایک ایسی معلمہ سے، ایک ایسی صدر معلمہ سے جس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے
کہ ایک شہر ایک خانوادہ ایسا ہے جو اپنی خدمات صحافت سے لے کر تعلیم و تعلم سے لے کر دینی معاملات میں بھی انجام دے رہا ہے. ایسی سربراہی کرنے والی شخصیت کا نام مولانا نثار صاحب ہے. آپ نشاط گرلز ہائی اسکول کے چیئرمین ہیں. آپ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. میں نہایت ادب و احترام سے ڈاکٹر فاروق صاحب جو صدر کیمپس سے آپ کا تعلق ہے، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ مولانا محمد نثار صاحب کا آج کی اس بزم میں پرتپاک استقبال کریں. زوردار تالیوں میں مولانا نثار صاحب کا استقبال کیا جائے. یہ ہمارے محترم، ہمارے قائد، ہمارے رہنما ہیں. حاضرین مجید بات کریں ڈاکٹر فاروق صاحب. وہ ڈاکٹر صاحب کا آج کی اس بزم میں پرتپاک استقبال کریں. زوردار تالیوں میں ڈاکٹر منظور صاحب کا استقبال کیا جائے. کی اعزازی تقریب میں آپ کا پرتپاک استقبال کریں. زوردار ڈاکٹر فاروق صاحب کا استقبال حقیقت پیش کر آج کی اس بزم میں آپ کا پرتپاک استقبال کیا جائے. زوردار تالیوں میں شیخ امیر صاحب کا استقبال کیا جائے. بزم میں آپ کا پرتپاک استقبال کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات کیا جاتا ہے. میں ہمارے معلمہ گرلز ہائی اسکول سے آپ کا تعلق ہے. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کر انصاری ساجدہ نہال میڈم کا پرتپاک استقبال کریں. زوردار تالیوں میں آپ کا استقبال کیا. اس آپ 12ویں سٹی ٹاپر رہی ہیں. زوردار تالیوں میں اس بچے کی حوصلہ افزائی کیجیے. مگر اسٹیج پر انصاری سے نوازیں. میں اسٹیج پر تمام موجود ہمارے معززین باوقار شخصیات سے ملتمس ہوں کہ اس بچے کو اس کے اعزاز سے نوازیں. زوردار تالیوں میں اس بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے. ایک فعال معلم کے صاحبزادے انصاری اس کو اس کی سراہنا کریں. زوردار تالیاں ہونی چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نہایت سپاسگزار ہوں. بہت شکریہ. اس محترمہ کا پرتپاک استقبال کیا جائے، کا اعزاز کیا جائے. خلیص فاطمہ شکیل احمد. زوردار تالیوں میں آپ کا استقبال کیا جائے، آپ کا اعزاز کیا جائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اور محمد رضا سر سے بھی میں ملتمس ہوں کہ ان کا احترام کیا جائے. عبد الباسط ظفر عابد بخشی صاحب، انٹرنیشنل خطاطی ٹیچر. زوردار تالیوں میں آپ کا استقبال کیا جائے. تو زوردار تالیوں میں ان کی خدمت کا اعتراف کیا جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. کسی شاعر نے یوں کہا تھا کہ کانٹوں میں کھلتا ہے شولوں میں پلتا ہے. کانٹوں میں کھلتا ہے شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. یہ ایسی ہی شخصیت ہے جو تاریخ بدلنے کا کام. بہت شکریہ سر. اور رضوان ربانی سر سے بھی میں ملتمس ہوں کہ ہمارے عظمت اقبال صاحب کا استقبال کریں، پرتپاک استقبال کیا جائے. معززین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں. ان کے لیے شاعر نے یوں کہا تھا، علم و ادب میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویشالی بھاسکر مراٹھے صاحبہ، نہایت کم وقفے میں آپ نے اردو سیکھی اور سکھا رہی ہیں. یہ بڑا فریضہ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیگر ملاحظ کے ساتھ میں آپ کو اعزاز دیں، آپ کا استقبال کریں. آپ کی خدمت میں ایک سپاسنامہ بھی پیش کیا جانا ہے.
جو جس صفات نامے میں آپ کی کاوشیں، آپ کی محنتیں، آپ کے فکر خیال، آپ کے تخیلات، آپ کیا جذبہ ملت رکھتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس سیشن کے بعد میں، اس تقریب کے بعد میں آپ کو میں سیوا گزارش ہوں کہ آپ کی خدمات کا اعتراف کریں اور آپ کو میمنٹو ماشاءاللہ بڑی بات ہے کہ آج آپ کے والد محترم بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کا بھی اعتراف کیا جاتا ہے. گل ایوبی محمد ایوب صاحب، بہت شکریہ سر. زور جزیز معززین شہر سے منتبس ہوں کہ آپ نے خدمت کا اعتراف کریں. شال اور میمنٹو اور اسناد سے آپ کو مستفیض کریں. زوردار تالیاں ہو جائیں جمال احمد شمس الزہرا صاحب. مدعو کرتا ہوں زوردار تالیوں میں آپ کا استقبال کیا جائے. آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کسی شاعر نے یوں کہا تھا ان کے زیر اثر ہے زمانہ، یہ جو بیٹھے ہیں سروں کو جھکائے ہوئے. ایسی نہایت مستعلق شخصیت کا نام الحاج عبدالعزیز محمد عمر ہے. بہت شکریہ. اور یہاں پر شہر عزیز کے خاص انٹرسٹڈ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے سامعین کے طور پر، آج کا یہ پروگرام ایک اپنے آپ میں بہت ہی مخصوص پروگرام ہے، کیونکہ جب رضوان میں ہمارے شہر عزیز کے طلبہ و طالبات کا کہیں بھی کوئی بھی پروگرام نہیں ہوا، کیونکہ جو یہ پینڈیمک چل رہا ہے اس کی وجہ سے تمام پروگرام جو ہے منسوخ کر دیے گئے ہیں. لیکن پھر بھی آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو تھوڑا سا ریلیکسیشن ملا ہے تو ہم ایک ایسا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جن میں طلبہ و طالبات کا جو ہے استقبال بھی ہو، شہر عزیز کے آرٹسٹوں کا بھی استقبال ہو، اور ایک جو تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اس میں مینجمنٹ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، ہیڈ ماسٹرز بھی ہیں، اور جو یہاں کی ان کو ایک ساتھ جو ہے یہاں پر جمع کرنے کے بعد ایک پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ کہوں گا ایک سلسلہ لے کر چل رہے ہیں کہ جو انہوں نے کافی مشہور ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر، اور یہ بہت زیادہ ضرورت تھی کہ بھئی مالیگاؤں کو انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے لے جانے کی. میں اپنی طرف سے، اپنے تمامی اداروں کی طرف سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کا انہوں نے ایک پروگرام جو ہے یہاں منعقد کیا ہے، کامیاب پروگرام جو سلیکٹڈ لوگوں کے لیے تھا، لیکن ان کے چینل سے پورے انڈیا میں انقلاب پوری دنیا میں پھیلے گا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے اس بامقصد پروگرام کے صدر محترم ریاض الدین ربانی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور صاحبان اعزاز، کیونکہ امتیاز میں کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ اس کے بعد تعلق کچھ کہا جائے. بہرحال کیونکہ بلا دیا گیا ہے اس لیے دو جملے تو بہرحال اور برداشت کر لیجیے آپ لوگ. یہ جو ربانی فیملی ہے، کہتے ہیں کہ پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یہاں جو پھل ہے وہ اپنے پیڑ سے پہچانا جاتا ہے. تقریبی سردار جو ان کے والد ہوا کرتے تھے وہ کہ کچھ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آج سپریم کورٹ جو کام کر رہی ہے یہی کام وہ بغیر پڑھے لکھے کرتے ہیں. شہر کا مسئلہ ہو کہ کہیں سے کسی بے انصافی کی کہیں کوئی بو تک کوئی رمق باقی نہیں رہتی تھی، اور دونوں فریق جو ہے وہ حتی الامکان بلکہ کما حق مطمئن ہو جایا کرتے تھے. اسم کا ذات پہ کہتے ہیں اثر ہوتا ہے.
रियाजुद्दीन साहब को वहां से वो सिलसिला मिला। वो के पढ़े लिखे नहीं थे फखरुद्दीन सरदार साहब, लेकिन वो फैजान नजर था, यहाँ पे मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फजल, इन्होंने सीखा और उसके बाद अपने बच्चों को तालीम दी और किसी को वकील बनाया, किसी को टीचर बनाया। बहरहाल तालीमी सिलसिला जारी वो सारी रखा और एक दर्द के साथ जारी रखा। इस खानवादे में जो एक लड़का जिसका नाम रिजवान रब्बानी कहा जाता है, ये जुनून शौक में अपने खानदान वालों से कुछ 4 कदम आगे बढ़ गया और अपने दादा के बाद खानदान में सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला शख्स जो है वो इस खानदान का बन गया। शुरू में जब ये बच्चा स्टेज पर आया करता था तो काफी झिझक का शिकार होता था, लेकिन ये देखिए कि उसने हिम्मत नहीं हारी, स्टेजों पर आता रहा, बोलता रहा, सिलसिला दराज रखता रहा और आज ये आलम है कि बड़े बड़े प्रोग्रामों में रिजवान रब्बानी का नाम जो है, जब कोई किसी को दावतनामा मिलता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि रिजवान रब्बानी इसमें है कि नहीं, तो वो मायूस नहीं होता है। तय बाहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा, तय बाहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा, रास्ता दुश्वार था लेकिन सफर करता। क्या बात है साहब। ये सिलसिला चला और किसी एक शोबे से मुंसलिक नहीं रहा। 1917, 1914, 1918 में खामोशी से मेडिकल कैंपों का इंतकाल करके ऐसे मरीज जो बहुत परेशान हुआ करते थे, जिनके पास पैसे की कमी होती थी लेकिन इलाज जरूरी था, ऐसे लोगों का इलाज जो है मेडिकल कैंप के इनकाद के बाद इन्होंने शुरू किया। जहाँ जैसी जरूरत पेश आई, कहीं तालीमी मामला आया तो वहाँ तालीमी इनकलाब पैदा करने में साथ साथ रहा लोगों के। और फिर उसके बाद एक यूट्यूब चैनल रब्बानी द स्कॉलर, बहुत सारे ट्यूब चैनल बने लेकिन रब्बानी द स्कॉलर का नाम जब आया तो लोग चौंके कि ये कौन सा चैनल है, लेकिन उसने अपने नाम के साथ इंसाफ किया और रब्बानी ट्यूब चैनल जो है वो आज जो है मालेगांव से लेके हिंदुस्तान के दीगर शहरों में वो अपना नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, किसी एक शोबे को मुनाफिक होकर नहीं रहा या सिर्फ एक शोबा पकड़ के नहीं चला। वो शख्स जहाँ जैसी जरूरत रही तब्दील होता रहा, खिदमत करता रहा, ये खानदान खिदमत करता रहा। और कहते हैं कि जब सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती है, सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती है, जरा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। तो ये जो है मुख्तलिफ अंदाज से पुकारता रहा और इस यकीन के साथ चलता रहा कि बहुत सारे ज़हीन हजरात भी इसके सामने हार गए और यकीन जीत गया। शिकस्त फतह ने एक बात ये उभारा है, शिकस्त फतह ने एक बात ये उभारा है, यकीन जीत गया है, गुमान हारा है। मैं आपकी समाअत को और ज़ेरबार नहीं करूँगा, बस इतना है कि जो साहिबान एजाज हैं चुन ले चंद तहरीरे हवालों के लिए जिंदगी की वो किताबें मोतबर बन जाएगी। एजाज किया जाना चाहिए। एक अजीम शख्स, अजीम बाप का अजीम बेटा कहलाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चा, और नहायत ही फर्माबरदार, नहायत ही अदब और सलीके से गुफ्तगू करने वाला ये बच्चा आज शहर अजीज मालेगांव के एक इल्मी ज़ुल्मत शब में खुर्शीद जहां था तहरीर रिजवान रब्बानी कि तलान खाक में कुछ ऐसे अफराद भी आराम फरमा है जिन्होंने जिश्नगान उलूम के लिए जुए उलूम के ऐसे धारे बहाए हैं जो तस्कीन कल्ब का बाइस हुए हैं। माजी करीब का मुताला करें या माजी करीब का, ऐसे बेशुमार अफराद हैं जो मौत से हमकिनार होने के बावजूद जिंदा हैं और उनके नाम लेवा अकीदत और एहतराम से उनके मकासद हसना को ना सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उसमें मजीद हुस्न पैदा करते हुए खूब से खूब तर की तरफ रवा दवा है। तारीख के औलाद ऐसे ताबनाक और रोशन सितारों से पुर हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मंजदार ने आंधी के दोष पर
तूफान से टकराने का हौसला यकीनन कम ही लोगों में होता है। ऐसे ही नायाब वो कामयाब लोगों में एक रोशन सितारा है कि जिसने जुल्मते शब में खुर्शीद जहां ताब का किरदार अदा किया कि जो इरादे का हिमालय है, अमल का आबशार है, हरकतों अमल का परतव है, जिक्र है, तहसीन है, हमा जहर, बाकमाल, अहद साज, माया नाज, मुनफरिदुल मिसाल वो अबखरी शख्सियत का कि जिसने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निभाया और मुसलसल 2.5 दहाइयों से भी ज़ायद अरसा उस सुन्नत पर अमल पैरा रहते हुए एक जहान को इल्म से सैराब किया। अपनी जिंदगी के कीमती 26 साल कौम के नौनिहालों के नाम वक्फ कर दिए और मिस्ल आफ्ताब अपनी किरणें बिखेरते हुए आज भी मुनव्वरो फरोज़ां है। मोहतरमा अंसारी रुकैया परवीन मोहम्मद सिद्दीक साहबा उस तारीख साज हस्ती का नाम है जो बेशुमार खूबियों का मुरक्का है कि जिसने जमाने के हर सर्द गर्म को सहते हुए अपनी तमाम तर घरेलू जिम्मेदारियों को निभाया और जिंदगी के खुशगवार, यादगार, मिसाली और तारीखी लम्हात भी गुजारे। उन्हीं लम्हात में वो पल भी आया जब आपकी नुमाया खिदमत के एवज समदानी एजुकेशनल ट्रस्ट हैदराबाद ने अवार्ड पेश किया और उसी तरह गाहे गाहे मालेगांव रतन अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट डिग्निटी अवार्ड, मधुरा तपस्वी अवार्ड, बजमन यौम ख्वातीन, बेस्ट जजमेंट अवार्ड भी तफवीज़ किए गए और आज इस पुरस्कार तकरीब में इंतहाई फाल सदर मौलमा का अवार्ड भी तफवीज़ किया जा रहा है। इसे आपकी मेहनत शाबका और जिद्दोजहद का हासिल कहा जाए तो बेजा ना होगा। आसान समझती है कि तदरीस को दुनिया जर्रों को यह खुर्शीद बनाने का अमल है। मोहतरमा आपकी सादगी व पुरकारी, मिलनसारी व बेबाकी, कसीरुल जिहाद व हम पहलू अबकरी शख्सियत, कायदाना सलाहियत आपकी ज़ात का वो मुनफरिद पहलू है जो आपको न सिर्फ अपने स्टाफ, अपने खानदान, खवेश व अकारिब और रिश्तेदारों में बल्कि हर खास माम में आपको मुनफरिद करता है। आपकी शख्सियत ज़हनों और दिलों पर राज करती है। यही वजह है कि न सिर्फ स्कूली तकारीब बल्कि खानदान और रिश्तेदारों के यहाँ मुनक्किद होने वाली हर छोटी बड़ी तकारीब आपके बगैर अधूरी लगती है। मोहतरमा आज नहीं तो कल कवानीन और ज़वाबित की रूह से आप अपने फराइज़ मनसबी से सुबकदोश हो रही हैं। चाह जाए कि मौलिम का हयात सुबकदोश नहीं होता। हमें कभी उम्मीद है कि आप अपनी आखिरी सांस तक कौम व मिल्लत की रहनुमाई का फरीज़ा और नौनिहालान कौम की तरबियत का काम अंजाम देती रहेंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मोहतरमा रुकैया परवीन साहबा की खिदमत को शर्फ कबूलियत बख्शे और उसी को मौसूफा के लिए राह निजात का जरिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिजानिब अदालत खजान रब्बानी स्कॉलर यूट्यूब चैनल और ब्लॉग, रब्बानी खत्ताती मरकज, रब्बानी फाउंडेशन, मोरखत 24 जनवरी 2021 बरोज इतवार का मकाम, इसका स्थान मालेगांव। सदर मोहतरम के हाथों आज का एजाज किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में सब रब्बानी हज़रत साहिबा मैडम दीगर मुअज़्ज़िज़ीन सामीन सही मानों में इम्तियाज़ सर और रब्बानी सर के इतना बोलने के बाद किसी को बोलने कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं मोहम्मद सर बोल रहा था कि इनको अपने गिरने के लिए चलना चाहिए, वहाँ एक लाउड स्पीकर दे के खड़ा कर बोलो दिन भर जितना भी बोलना है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कोविड-19 के ऐसे माहौल में रब्बानी सर ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। काबिल मुबारकबाद है आपको कि अलग अलग फील्ड के अंदर जो है हमारे शहर के लोग जो खिदमत अंजाम दे रहे और जो जिन्होंने कामयाबी हासिल की, आपने उनको हौसला देने के लिए ये प्रोग्राम पूरा अरेंज किया सर। और आपके प्रोग्राम अरेंज करने का मकसद जो था, मैं रब्बानी सर को आज से काफ़ी पहले से जानता हूँ। जब मैं स्कूल बोर्ड में सर की काबिलियत देखा कि 5वीं और 7वीं में जब हम सेंट्रल एग्ज़ाम लेते थे तो सर के ज़िम्मे पूरे पेपर सेट करने की जिम्मेदारी जो है सर मौसूल के ज़िम्मे है। जो मंजिल की तरफ चलते हैं मंजिल ढूंढ लेते हैं, जिन्हें सेरा नवर्दी की लगन और इखलास हो दिल में, वो दुनिया में ज़माने पर हासिल ढूंढ लेते हैं। ये हमारे आज इतने बामकसद प्रोग्राम को आपने अरेंज किया। आज आपको ऐसा महसूस होता होगा, लेकिन शहर में बहुत सारे ऐसे शादी की तकरीबात बहुत शुक्रिया।
इस मोहतरमा का पुरतपाक इस्तेकबाल किया जाए, इनका एहसास किया जाए। कनीस फातिमा शकील अहमद, जोरदार तालियों में आपका इस्तेकबाल किया जाए, आपका एहसास किया जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। और मोहम्मद रजा सर से भी मैं मुतमिस हूँ कि इनका एहतराम किया जाए। अब्दुल बासित जफर आबिद बख्शी साहब, इंटरनेशनल कत्ता के टीचर, जोरदार तालियों में आपका इस्तेमाल किया जाए। तो जोरदार तालियों में इनकी खिदमत का एहतराम किया जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। किसी शायर ने यूं कहा था कि कांटों में चलता है, शोलों में पलता है। कांटों में खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। ये ऐसी ही शख्सियत है जो तारीख बदलने का काम। बहुत शुक्रिया सर। और रिजवान रब्बानी सर से भी मैं मुतमिस हूँ कि हमारे अजमत इकबाल साहब का इस्तेकबाल करें, पुरतपाक इस्तेकबाल किया जाए। मौजूदीन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इनके लिए शायर ने यूं कहा था, इल्म अदब में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैशाली भास्कर मराठी साहिबा, नहायत कम वक्फे में आपने उर्दू सीखी और सिखा रही हैं, ये बड़ा फरीजा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दीगर ताहिर के साथ में आपको एजाज दें, आपका इस्तेकबाल करें। आपकी खिदमत में एक सिफातनामा भी पेश किया जाना है, जिस सिफातनामे में आपकी काविशें, आपकी मेहनतें, आपके फिक्र ख्याल, आपके तखय्युलात, आप क्या जज्बा मिल्लत रखती हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सेशन के बाद में, इस तकरीब के बाद में आपको मैं सेवा कमीज हूँ कि आपकी खिदमत का एहतराम करें और आपको मेमेंटो। माशाल्लाह बड़ी बात है कि आज आपके वालिद मोहतरम भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बड़े एहसास की बात है कि आपका भी एहतराम किया जाता है। गुल अय्यूबी मोहम्मद अय्यूब साहब, बहुत शुक्रिया सर। जोर जजीज मुअज़्ज़िज़ीन शहर से मुंतमिस हूँ कि आपकी खिदमत का एहतराम करें। शॉल और मेमेंटो और असनाद से आपको मुस्तफीज करें। जोरदार तालियां हो जाए। जमाल अहमद शम्सुल ज़ोहरा साहब, मदद करता हूँ, जोरदार तालियों में आपका इस्तेमाल किया जाए। आपकी शख्सियत को देखते हुए किसी शायर ने यूं कहा था, इनके ज़ेरे असर है ज़माना, ये जो बैठे हैं सरों को झुकाए हुए। ऐसी नहायत मस्तालिक शख्सियत का नाम अलहाज अब्दुल अजीज मोहम्मद उमर है। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर शहर अजीज के खास इंटरेस्टेड लोग यहाँ पर बैठे हुए सामईन के तौर पर, आज का ये प्रोग्राम एक अपने आप में बहुत ही मखसूस प्रोग्राम है, क्योंकि जब रिजवान में हमारे शहर अजीज के तलबा और तालबात का कहीं भी कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ, क्योंकि जो ये पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से तमाम प्रोग्राम जो है मंसूख कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी आज के माहौल को देखते हुए जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिनमें तलबा और तालबात का जो है इस्तेकबाल भी हो, शहर अजीज के आर्टिस्टों का भी इस्तेकबाल हो, और एक जो तालीम से रिलेटेड लोग हैं उसमें मैनेजमेंट भी हैं, असातिज़ा भी है, हेड मास्टर्स भी हैं, और जो यहाँ की उनको एक साथ मौका जो है यहाँ पर जमा करने के बाद एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो ये मैं कहूँगा
एक सिलसिला लेकर चल रहे हैं कि जो इन्होंने काफ़ी मशहूर हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि भाई मालेगांव को इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है ले जाने की। मैं अपनी तरफ से, अपने तमामी अदारों की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज का इन्होंने प्रोग्राम जो है यहाँ मुनक़िद किया है, कामयाब प्रोग्राम जो सिलेक्टेड लोगों के लिए था, लेकिन इनके चैनल से पूरे इंडिया में इनका पूरी दुनिया में फैलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर मोहतरम रियाजुद्दीन रब्बानी साहब, स्टेज पर बैठे हुए और साहिबान एजाज, क्योंकि इम्तियाज में कुछ छोड़ा ही नहीं कि उसके बाद कुछ कहा जाए। बहरहाल क्योंकि बुला दिया गया है, इसलिए दो जुमले तो बहरहाल और बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग। ये जो रब्बानी फैमिली है, कहते हैं कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, यहाँ जो फल है वो अपने पेड़ से पहचाना जाता है। अफरीदी सरदार जो इनके वालिद हुआ करते थे, वो के कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है यही काम को बगैर पढ़े लिखे करता है। शहर का मसला हो कि कहीं से किसी बेइंसाफी की कहीं कोई बू तक कोई रमक बाकी नहीं रहती थी, और दोनों फरीक जो है वो हद्दल इम्कान बल्कि कमा कहूँ मुतमईन हो जाया करते थे। इस्म का जात पे कहते हैं असर होता है। रियाजुद्दीन साहब को वहां से वो सिलसिला मिला, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे फखरुद्दीन सरदार साहब, लेकिन वो फैजान नजर था, यहाँ पे मकतब की करामत थी। सिखाए किसी इस्माइल को आजाद फजल, इन्होंने सीखा और उसके बाद अपने बच्चों को तालीम दी और किसी को वकील बनाया, किसी को टीचर बनाया। बहरहाल तालीमी सिलसिला जारी वो सारी रखा और एक दर्द के साथ जारी रखा। इस खानवादे में जो एक लड़का जिसका नाम रिजवान रब्बानी कहा जाता है, ये जुनून शौक में अपने खानदान वालों से कुछ 4 कदम आगे बढ़ गया और अपने दादा के बाद खानदान में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला शख्स जो है वो इस खानदान का बन गया। शुरू में जब ये बच्चा स्टेज पर आया करता था तो काफी झिझक का शिकार होता था, लेकिन ये देखिए कि उसने हिम्मत नहीं हारी, स्टेजों पर आता रहा, बोलता रहा, सिलसिला दराज रखता रहा और आज ये आलम है कि बड़े बड़े प्रोग्रामों में रिजवान रब्बानी का नाम जो है, जब कोई किसी को दावतनामा मिलता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि रिजवान रब्बानी इसमें है ही नहीं, तो वो मायूस नहीं होता है। तय बाहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा, तय बाहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा, रास्ता दुश्वार था लेकिन सफर करता। क्या बात है साहब। ये सिलसिला चला और किसी एक शोबे से मुंसलिक नहीं रहा। 1917, 1914, 1918 में खामोशी से मेडिकल कैंपों का इंतकाल करके ऐसे मरीज जो बहुत परेशान हुआ करते थे, जिनके पास पैसे की कमी होती थी लेकिन इलाज जरूरी था, ऐसे लोगों का इलाज जो है मेडिकल कैंप के इंतकाल के बाद इन्होंने शुरू किया। जहाँ जैसी जरूरत पेश आई, कहीं तालीमी मामला आया तो वहाँ तालीमी इनकलाब पैदा करने में साथ साथ रहा लोगों के। और फिर उसके बाद एक यूट्यूब चैनल रब्बानी द स्कॉलर, बहुत सारे ट्यूब चैनल बने लेकिन रब्बानी द स्कॉलर का नाम जब आया तो लोग चौंके कि ये कौन सा चैनल है, लेकिन उसने अपने नाम के साथ इंसाफ किया और रब्बानी ट्यूब चैनल जो है वो आज जो है मालेगांव से लेके
हिंदुस्तान के दीगर शहरों में वो अपना नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है किसी एक शोबे को मुनाफिक होकर नहीं रहा या सिर्फ एक शोबा पकड़ के नहीं चला। वो शख्स जहाँ जैसी जरूरत रही तब्दील होता रहा, खिदमत करता रहा, ये खानदान खिदमत करता रहा। और कहते हैं कि जब सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती है, सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती है, जरा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। तो ये जो है मुख्तलिफ अंदाज से पुकारता रहा और इस यकीन के साथ चलता रहा कि बहुत सारे ज़हीन हजरात भी इसके सामने हार गए और यकीन जीत गया। शिकस्त फतेह ने एक बात ये उभारा है, शिकस्त फतेह ने एक बात ये उभारा है, यकीन जीत गया है, गुमान हारा है। मैं आपकी समाज को और ज़ेरबाज नहीं करूँगा, बस इतना है कि जो साहिबान एजाज हैं चुन ले चंद तहरीरें हवालों के लिए जिंदगी की वो किताबें मोतबर बन जाएगी। एजाज किया जाना चाहिए। एक अजीम शख्स, अजीम बाप का अजीम बेटा कहलाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चा, और नहायत ही फर्माबरदार, नहायत ही अदब और सलीके से गुफ्तगू करने वाला ये बच्चा आज शहर अजीज मालेगांव के एक इल्मी ज़ुल्मत शब में खुर्शीद जहां था तहरीर रिजवान कप्पानी। इब्तिदान खाक में कुछ ऐसे अफराद भी आराम फरमा है जिन्होंने तिश्नगान उलूम के लिए जुए उलूम के ऐसे धारे बहाए हैं जो तस्कीन कल्ब का बाइस हुए हैं। माजी करीब का मुताला करें या माजी करीब का, ऐसे बेशुमार अफराद हैं जो मौत से हमकिनार होने के बावजूद जिंदा हैं और उनके नाम लेवा अकीदत और एहतराम से उनके मकासद हसना को ना सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उसमें मजीद हुस्न पैदा करते हुए खूब से खूब तर की तरफ रवा दवा है। तारीख के औलाद ऐसे ताबनाक और रोशन सितारों से पुर हैं। अज़ीज़ान इकरामी, मंजदार ने आंधी के दोष पर तूफान से टकराने का हौसला यकीनन कम ही लोगों में होता है। ऐसे ही नायाब वो कामयाब लोगों में एक रोशन सितारा है कि जिसने ज़ुल्मत शब में खुर्शीद जहां ताब का किरदार अदा किया कि जो इरादे का हिमालय है, अमल का आबशार है, हरकतों अमल का परतव है, जिक्र है, तहसीन है, हमा जहद, बाकमाल, अहद साज, माया नाज, मुनफरिदुल मिसाल वो अबसरी शख्सियत का कि जिसने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निभाया और मुसलसल 2.5 दहाइयों से भी ज़ायद अरसा उस सुन्नत पर अमल पैरा रहते हुए एक जहान को इल्म से सैराब किया। अपनी जिंदगी के कीमती 26 साल कौम के नौनिहालों के नाम वक्फ कर दिए और मिस्ल आफ्ताब अपनी किरणें बिखेरते हुए आज भी मुनव्वरो फरोज़ां है। मोहतरमा अंसारी रुकैया परवीन मोहम्मद सिद्दीक साहबा उस तारीख साज हस्ती का नाम है जो बेशुमार खूबियों का मुरक्का है कि जिसने जमाने के हर सर्द गर्म को सहते हुए अपनी तमाम तर घरेलू जिम्मेदारियों को निभाया और जिंदगी के खुशगवार, यादगार, मिसाली और तारीखी लम्हात भी गुजारे। उन्हीं लम्हात में वो पल भी आया जब आपकी नुमाया खिदमत के एवज समदानी एजुकेशनल ट्रस्ट हैदराबाद ने अवार्ड पेश किया और उसी तरह गाहे गाहे मालेगांव रतन अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट डिग्निटी अवार्ड, मधुरा तपस्वी अवार्ड, बजमन यौम ख़वातीन, बेस्ट जजमेंट अवार्ड भी तफवीज़ किए गए और आज इस पुरगना तकरीब में इंतहाई फाल सदर मौलमा का अवार्ड भी तफवीज़ किया जा रहा है। इसे आपकी मेहनत शादका को जिद्दोजहद का हासिल कहा जाए तो बेजा ना होगा। आसान समझती है कि तदरीस को दुनिया जर्रों को यह खुर्शीद बनाने का अमल है। मोहतरमा, आपकी सादगी वो पुरकारी, मिलनसारी वो बेबाकी, कसीरुल जिहाद वो अहम पहलू, अबकरी शख्सियत, कायदाना सलाहियत आपकी ज़ात का वो मुनफरिद पहलू है जो आपको न सिर्फ अपने स्टाफ, अपने खानदान, खवेश व अकारिब और रिश्तेदारों में बल्कि हर खास उम्म में आपको मुनफरिद करता है। आपकी शख्सियत ज़हनों और दिलों पर राज करती है। यही वजह है कि न सिर्फ स्कूली तकारीब बल्कि खानदान और रिश्तेदारों के यहाँ मुनक्किद होने वाली हर छोटी बड़ी तकारीब आपके बगैर अधूरी लगती है। मोहतरमा, आज नहीं तो कल कवानीन और ज़वाबित की रूह से आप अपने फ़राइज़ मनसबी से सुबकदोश हो रही हैं। चाह जाए कि मौलिम का हयात सुबकदोश नहीं होता। हमें कभी उम्मीद है कि आप अपनी आखिरी सांस तक कौम मिल्लत की रहनुमाई का फरीज़ा और नौनिहालान कौम की तरबियत का काम अंजाम देती रहेंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मोहतरमा रुकैया परवीन साहबा की खिदमत को
को शर को कबूलियत बख्शे और उसी को मौसूफा के लिए राह निजात का जरिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिजानिब अदालत फैजान रब्बानी स्कॉलर यूट्यूब चैनल और ब्लॉग, रब्बानी हत्ताकी मदद, रब्बानी फाउंडेशन, मोरखा 24 जनवरी 2021 बरोज इतवार का मकाम, इसका स्थान मालेगा। सदर मोहतरम के हाथों आज का एजाज किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में सब रब्बानी हजरत साहिबा मैडम दीगर मोअज़्ज़िज़ीन सामीन करम, सही मानों में इम्तियाज सर और रब्बानी सर के इतना बोलने के बाद किसी को बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं मोहम्मद सर बोल रहा था कि इनको अपने गिरने के लिए चलना चाहिए, वहाँ एक लाउड स्पीकर दे के खड़ा कर बोलो दिन भर जितना भी बोलना है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कोविड-19 के ऐसे माहौल में रब्बानी सर ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। काबिल मुबारकबाद है आपको कि अलग अलग फील्ड के अंदर जो है हमारे शहर के लोग जो खिदमत अंजाम दे रहे और जिन्होंने कामयाबी हासिल की, आपने उनको हौसला देने के लिए एक प्रोग्राम पूरा अरेंज किया सर। और आपके प्रोग्राम अरेंज करने का मकसद जो था, मैं रब्बानी सर को आज से काफ़ी पहले से जानता हूँ। जब मैं स्कूल बोर्ड में सर की काबिलियत देखा कि 5वीं और 7वीं का जब सेंट्रल एग्ज़ाम लेते थे तो सर के ज़िम्मे पूरे पेपर सेट करने की जिम्मेदारी जो है सर ने मौसूफ के ज़िम्मे रहे। और जो मंजिल की तरफ चलते हैं मंजिल ढूंढ लेते हैं, जिन्हें सेरा नवर्दी की लगन और इखलास हो दिल में, वो दुनिया में जमाने पर हासिल ढूंढ लेते हैं। ये हमारे रब्बानी सर है। आज इतने बामकसद प्रोग्राम को आपने अरेंज किया। आज आपको ऐसा महसूस होता होगा, लेकिन शहर में बहुत सारे ऐसे साथी तकरीबात और बहुत एक एहसास जगाते हैं, शहर की काबिलियत को बढ़ाते हैं, नाम को बुलंद करते हैं। उन सब की मुबारकबाद के साथ कि शमशीर अस्र ज़ाहर बच्चों कुनत कसे, शमशीर अस्र ज़ाहर बच्चों कुनत कसे, नाकस बतरबियत न शवद हकीम कस। जिस तरह अच्छी शमशीर खराब लोहे से नहीं बनता, इसी तरह बगैर तरबियत के कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं उन तमाम माँ बाप को, असातिज़ा को, वो रहनुमायान को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने इस मकाम तक टॉपर को और अलग फील्ड में काम करने वालों को पहुँचाया है। आप तमाम की शुक्रिया सर की बात रियाजुद्दीन रब्बानी साहब, स्टेज पर बैठी हुई तमाम ही मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ और काबिल कदर सामईन, जज्बात अभी काबू में नहीं है। ख़ासतौर से उसके बाद जब रब्बानी सर ने जो है सफ़ातनामा पढ़ा, दिल की एक अजीब सी कैफियत हो गई और जज्बात काबू में नहीं है। फिर भी अपनी शुरुआत करती कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो चलने का तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगी थी, अब मैं बोलूँगी तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूँगी तो बातों में असर भी देना। यकीनन सामईन, रब्बानी सर ने जो पढ़ा तो आप भी सोच में गुम होंगे कि वो कौन सी शख्सियत है, तो यकीनन आपको मुझे सुनने का इश्तियाक हो। आप जानना चाहोगे कि ये शख्सियत कौन सी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने ख्यालात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं 26 जनवरी की तकरीबात की मसरूफियात में गुम थी। इसी दौरान रब्बानी सर जो है वो स्कूल में तशरीफ़ लाए, मुझे दावतनामा पेश किया। उस वक्त तो मैंने उसे लेकर एक किनारे रख दिया, लेकिन जब थोड़ी फुर्सत पाई उसे देखा तो मैंने सोचा कि मैं तो अब रिटायरमेंट के दहाने पे खड़ी हुई हूँ, 4 माह बाकी हैं मुझे रिटायरमेंट में, तो मुझे इस रिटायरमेंट के दहाने पर भला सताइश की और हौसले की क्या जरूरत। लेकिन उसके बाद फिर मैंने फहरिस्त पर ध्यान दिया, 15 लोगों की फहरिस्त। फिर मुझे यूँ महसूस हुआ कि रब्बानी सर ने जो है
चंद महीनों के बाद मैं अपनी खिदमत से संतोष हो जाऊंगी, लेकिन ये जो नई नस्ल है पुरानी नस्ल से, मुझ जैसे बुजुर्ग शख्सियत से कुछ न कुछ सबक तो सीखे। और भी मुझे वहाँ पर थोड़ा इत्मीनान हुआ कि नहीं, अगर उन्होंने इस मोड़ पर भी अगर मुझे सताइश दी है तो यकीनन उनका ये काम जो है काबिल सताइश है। और अभी मैं बैठी यही सोच रही थी कि उन्होंने जो काम किया है, एक नई नस्ल को पुरानी नस्ल से जोड़ने के लिए जो काम किया, मैंने नहीं देखा इससे पहले कि इससे पहले ऐसा हुआ। तो मैं यही सोच रही थी कि इनको भी जो है कोई अवार्ड से नवाजा जाए, और यकीनन वो वक्त कबूलियत की थी, मेरी दुआ कबूल हो गई और मैंने देखा वो मंजर देखा जो मैं चाहती। अक्सर ऐसा होता है सामने, मेरी तमन्नाएं जो है वो अल्लाह ताला सुन लेता है, ये हकीकत है। दूसरी बात ये कि इस शख्स ने जो इंतजामात किए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में जो है वो एक कहना चाहिए अंजुमन रखते हैं। और मैं जानती हूँ कि रब्बानी सर ने पहले ही मरतबा मेरी मुलाकात उनकी जो है उस स्टेज पर हुई थी जब समदानी एजुकेशनल ट्रस्ट हैदराबाद के प्रोग्राम का मैंने इनेकाद किया था। उस वक्त तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उस प्रोग्राम की तरतीब देखकर उन्होंने मुझसे एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैडम मैं आपके अंडर में काम करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी जो है मुझे ये डिग्री है जो उनके साथ स्कॉलर लगा हुआ है, वाकई वो डिग्रियाँ रखते हैं। तो उन्होंने उस वक्त मुझसे कहा था मैं आपके अंडर में काम करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा कि आप तो सर्विस से मुंसलिक है ना, वहीं पे सरदार एजुकेशनल कैंपस में आप बरसरे रोजगार हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पक्की सर्विस पे नहीं हूँ, अल्लाह ताला उन्हें जो है पक्की सर्विस से नवाज दे, लेकिन उनका ये जुनून जो मैं आज देख रही हूँ वो ये है कि ढल जाए जो इंसान इल्म के पैकर में, अखलाक भी बोलेंगे, किरदार भी बोलेंगे। उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मकतबे इश्क के अंदाज निराले निकले, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। ये तो थे रब्बानी सर के ताल्लुक से मेरे एहसास जो उन्होंने ये काम किया। अब मैं आती हूँ जिसके एवज़ में मुझे ये अवार्ड मिला है, कुछ उसको मैं पेश करना चाहूँगी कि मैं जो है इस अदारे से मुंसलिक वहाँ के कुछ मैनेजमेंट के जिम्मेदारान भी यहाँ पर हाजिर हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो इस तकरीब में तशरीफ़ लाए, मैं उनका दिल खैर मकदम करती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी सर्विस सिर्फ इसी अदारे में पेश की और शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था। जिस रोज़ से मैं दाखिल हुई मैंने पहली कसम